वेलकम बच्चों। पिछली क्लास जो एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी उसमें मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया था कि बीएससी पार्ट 3 में क्या क्या सिलेबस है। 4 पेपर होते हैं एंड आई हैव टू टीच फर्स्ट पेपर मैथमेटिकल एंड क्लासिकल फिजिक्स। In that paper I have to teach 3 units only, and in 3 units 1 unit is from mathematical physics and 2 units from classical physics. So I will start first classical physics, classical mechanics. In classical mechanics the first word we use is constraint. What are the constraints? The constraints are the limitations or the geometrical restrictions on the motion of the particle or system of particle. And for example, if there is a point mass of a simple pendulum, and in this case this distance from point of suspension of point mass is L. This is always fixed. So this is a geometrical restriction in the motion of the point mass. Similarly, if there is a container in which there is a gas molecules, the motion of the gas molecules is restricted within the walls of the container. And similarly, third case, if there is a sphere and there is a particle on the top of the sphere and it moves under the gravity, then the particle will move and slide down and drop on the ground, say on the ground. Then the motion is restricted such that the distance between origin and the particle is always equal to or greater than the radius of the sphere. So these are the constraints. Constraints can be classified in various ways. तो उनमें से हम लोग पहला तरीका ये होता है कि हम लोग ऐसे स्पेसिफाई करते हैं कि नंबर 1 जैसे होलोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स एंड non-holonomic constraints. If say there are n particles in a system and their position vectors are say r1, r2, r3, rn and t be the time, then if the condition of the constraint is expressed as say f R1, R2, say Rn t equal to 0, then the constraint is known as holonomic. If there is equality sign, then we say that constraint is holonomic. And if the condition of constraint cannot be expressed as equation 1, that is, if there is not equality sign in the condition of constraint, then the constraint is known as non-holonomic. For example, if we write the condition of constraint as this Rn t less than equal to 0, then this is non-holonomic constraint. Let us say in case of simple pendulum, then we have the condition of the constraint that the distance is fixed, say L. That is, if this is origin, then R equal to L. This is always satisfied. That is, R minus L is 0. R square is L square and R square minus L square is 0. Then we see that there is a equality sign, that is constraint is holonomic. Similarly, if a particle slide down from a particle is compelled to move on the surface of the sphere, अगर पार्टिकल को हम लोग ऐसा कर दें कि वो स्फीयर के सरफेस पर ही मूव करे, उसके बाहर न जाए, तो हम लोग कहेंगे उसकी कंडीशन क्या होगी। अगर ये ओरिजिन है और इसके कोऑर्डिनेट मान लो x y z है,
तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. दिस इज ऑलवेज इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर. So that is x square plus y square plus z square minus a square. This is 0. This is holonomic constraint because there is equality sign. अगर हम लोग ऐसा सोचें कि एक पार्टिकल है कि जो स्फीयर पर स्लाइड करता है और जो स्फीयर पर स्लाइड करता है मूव अंडर द ग्रेविटी एंड देन इज फॉल डाउन. In this case, the condition of constraint will be x square plus y square plus z square greater than equal to a square. जब तक उसके सरफेस पर रहेगा तब तो इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, और जब सरफेस से गिर जाएगा तो ग्रेटर देन ए स्क्वायर हो जाएगा. दैट इज दिस कंडीशन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड दिस इज नॉन पोलोनॉमिक कंस्ट्रेंट. So one method of specify the constraint is on the basis of equality, on the basis of condition of the constraint. And other method of is classify the constraint is on the basis of time. And there are two classification. One is scleronomic and other is rheonomic. If the condition of constraints are explicit time independent, once again, if the condition of constraints are explicit time independent, then the constraints are known as scleronomic, and if the condition of constraint is explicit time dependent, then the constraint is known as रियोनामिक. तो ऐसा नहीं है कि होलोनामिक होगा तो ये होगा या होलोनामिक होगा तो ये होगा. होलोनामिक भी हो सकता है, उसके साथ स्क्लेरोनामिक हो या रियोनामिक हो. नॉन होलोनामिक हो, उसके साथ स्क्लेरोनामिक हो या रियोनामिक हो. तो ये टाइम पर है. तो टाइम पर कैसे डिपेंड करेगा, तो इसमें एक वर्ड आया एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंट. तो उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंट का क्या मतलब हुआ. एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंट का मतलब हुआ कि जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारा कोई फंक्शन f है जो कि r1, r2, rn का फंक्शन है f. अब ये टाइम डिपेंडेंट तो हो सकता है. टाइम डिपेंडेंट कैसे हो सकता है, मान लीजिए आपसे कोई कहे कि df by dt निकालिए, तभी आपको पता लगेगा टाइम डिपेंडेंट है कि नहीं है. उसका आप df by dt निकाल लीजिए, पता लग जाएगा डिपेंड कर रहा नहीं. तो df by dt कैसे निकालेंगे, डेबर f by डेबर से r1 d r1 by dt प्लस डेबर f2 डेबर f by डेबर r2 डेबर r2 by डेबर t एंड सो ऑन. तो अब अगर ये टाइम डिपेंडेंट है, r टाइम डिपेंडेंट है, तो वैल्यू मिल जाएगी. तब हमारे f के अंदर टाइम नहीं दिख रहा, लेकिन ये जो फंक्शन है जिसका फंक्शन है f जिस पर डिपेंड कर रहा है, वो अगर टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो df by dt तो निकल आएगा. लेकिन इसको हम एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंट फंक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें t कहीं दिख नहीं रहा है. f में t दिखे स्पष्ट रूप से तब कहेंगे कि ये एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंट है. जैसे कि ये अगर ऐसे लिखा होता है कि f r1 r2 rn t इक्वल टू 0 या इक्वल टू नॉट 0, तो दिस f r1 r2 rn t, तो दिस इज एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंट बिकॉज देयर इज टाइम, व्हिच इज जो हमको दिख रहा है टाइम, और इसमें टाइम नहीं दिख रहा है. लेकिन ये फंक्शन टाइम डिपेंडेंट है, तो हम ये कहेंगे कि f हमारा टाइम डिपेंडेंट तो हो सकता है, यहाँ पर भी हो, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंट नहीं है. यहाँ पर एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंट है. हो सकता है कि r1 r2 आपके यहाँ पर भी डिपेंड हो टाइम पर, लेकिन एक्सप्लिसिट टाइम डिपेंडेंट भी है. अगर हमारा फंक्शन df इस तरह का है
तो हम लोग df बाई dt निकाल देंगे और देखेंगे ये हो सकता है कि नॉन जीरो आ जाए, हो सकता है जीरो आए, हो सकता है नॉन जीरो आ जाए। लेकिन इस केस में, अगर इसी केस में आपसे कोई कहे कि डेबर f बाई डेबर t निकालिए तो वो जीरो आ जाएगा क्योंकि इसमें t कहीं नहीं है। और जब हम लोग डेबर f बाई डेबर t निकालते हैं तो बाकी सबको कांस्टेंट कर देते हैं, तो R1 R2 सब कांस्टेंट हो गए तो डेबर f बाई डेबर t तो जीरो हो जाएगा इस केस में। हाँ, यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा कहने का मतलब कि इफ डेबर f बाई डेबर t इज जीरो then the f is explicit time independent। df by dt अगर जीरो हुआ तो वो टाइम इंडिपेंडेंट हो गया है, लेकिन डेबर f by डेबर t अगर जीरो हुआ तो वो एक्सप्लिसिट टाइम इंडिपेंडेंट हुआ। तो these are the classification of constraints। अब इसके बाद कंस्ट्रेंट से प्रॉब्लम्स आई कुछ कि कंस्ट्रेंट्स के कारण जब हम लोग कंस्ट्रेंट डिफाइन कर लिए तो एक चीज आ गया कि भाई कोऑर्डिनेट्स तो अब इंडिपेंडेंट नहीं रहे, और दूसरा ये कंस्ट्रेंट्स जो हैं, जैसे हम लोगों ने कहा कि एक पार्टिकल है स्फीयर के सरफेस पर मूव कर रहा है, तो उसको सरफेस पर मूव करने के लिए कौन सा फोर्स लग रहा है, किस फोर्स के कारण मूव कर रहा है, तो उस फोर्स के बारे में हमको कुछ शुरू में नहीं पता, बस इतना पता है कि पार्टिकल मूव कर रहा है बस। तो ये दो कठिनाइयाँ आती हैं क्योंकि अब वो कोऑर्डिनेट्स जो हमारे हैं वो सारे इंडिपेंडेंट नहीं है, इंटर रिलेशन है उनके बीच, ज्योमेट्रिकल रिलेशंस हैं उनके बीच, और दूसरा है कि फोर्स कि उनके बीच कुछ ऐसे फोर्सेज हैं जो वो रिस्ट्रिक्शन को लगने के लिए हो रहे हैं कि जिनके कारण वो रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो रहा है। तो वो दो डिफिकल्टी जो आई उससे कैसे निकला जाएगा, उसका क्या सोल्यूशन होता है कि ये दोनों डिफिकल्टी सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए फिर आया कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट यूज किया जाए तो ये हम इससे दूर हो सकते हैं, हमारी ये दोनों डिफिकल्टी दूर हो सकती है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, तो व्हाट आर जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स? तो ये इसको हम लोग जनरली क्यू से स्पेसिफाई करते हैं, क्यू आई लिखते हैं, क्यू आई इसको नोटेशन उसका रखते हैं। तो ये कोई स्पेशल कोऑर्डिनेट्स नहीं है। हम लोग कई तरह के कोऑर्डिनेट पढ़े हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और कौन सा पढ़े हैं, पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर में भी प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग एक्स वाई जेड बोलते हैं, उसे लिखते हैं, इसको आर थीटा से लिखते हैं, इसको आर थीटा फाई से डिनोट करते हैं, इसको इसमें था रो फाई जेड, रो फाई जेड। तो ये सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम है और जहाँ पर जो यूजफुल होता है उसके हिसाब से हम उसको यूज करते हैं। लेकिन ये जनरलाइज्ड कब होंगे? इनमें ये भी जनरलाइज हो सकता है, ये भी हो सकता है, सारे जनरलाइज हो सकते हैं। जनरलाइज कोऑर्डिनेट कोई नया सिस्टम नहीं, लेकिन उसमें एक विशेषता है कि वो कम से कम होते हैं, और दूसरा उसके अंदर जब हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट कह दिए तो उसके जितने भी कोऑर्डिनेट हैं उनके बीच कोई इंटर रिलेशंस नहीं, कोई ज्योमेट्रिकल रिलेशन नहीं उनके बीच कोई ज्योमेट्रिकल रिलेशन नहीं है। जिस तरह हम लोगों ने कह दिया दिस इज जनरलाइज कोऑर्डिनेट, दैट इज दीज ऑल आर इंडिपेंडेंट। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन हम लोग ऐसे करते हैं, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नीडेड फॉर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो ये जो हम लोग का जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा, दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल, डेफिनेशन नोट कर लीजिए, द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वेरिएबल्स
needed to specify to describe the motion of the system. Smallest possible independent variable. These should be independent, otherwise that will not be generalized coordinate. तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है जनरेटेड बाय QI, और ये कम से कम होंगे और इंडिपेंडेंट, जैसे हम लोग कहते थे, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के केस में, कि जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है, तो इसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए x, y, z चाहिए, या x1, y1, z1 चाहिए। तो एक पार्ट के लिए थ्री कोऑर्डिनेट्स सफिशिएंट। अब मान लीजिए दो पार्ट के हो, तो उसके लिए भी 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, y2, z2। तो हमको 6 कोऑर्डिनेट चाहिए, 6 उसके चाहिए। तो हम लोग कहते हैं कि इसको अगर एक कोऑर्डिनेट मान ले तो 6 डायमेंशनल स्पेस हो जाएगा ट्रेजेक्टरी का, और उसके हिसाब से मोशन करते हैं। लेकिन अभी क्या है, 6 कोऑर्डिनेट हमको चाहिए। अब अगर इनमें एक रिलेशन हो जाए कि x1 + x2 = 6, एक ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शन आ जाए कि मोशन इस तरह हो रहा है कि x1 + x2 हमेशा 6 है, तो अब क्या हुआ, अब जो 6 थी तो उनमें से एक कंडीशन हमारे पास है, एक कंडीशन कम हो जाएगी। अब उनको 5 कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी, चाहे x1 पता हो या x2 पता हो, एक से काम हो जाएगा। बाकी तो चाहिए y1, z1, y2, z2 चाहिए, इनमें से कोई एक मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हम दूसरा निकाल लेंगे। तो अब 5 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी, तो ये जो 5 हो गए ये कम हो गए। 6 थे, 6 से होता आपका, लेकिन 6 में कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इनके बीच एक रिलेशन था, तो उसको कम कर देंगे। तो अब मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो मिनिमम कितने आपको चाहिए, 5। अगर 2 रिलेशन पता होंगे तो 4 चाहिए, 3 रिलेशन पता होंगे तो 3 से काम हो जाएगा। लेकिन वो रिलेशन भी इंडिपेंडेंट हो, ऐसा ना हो कि x1 + x2 = 6 हो जाए, फिर कभी 2x1 + 2x2 दिस इज 12। ये इंडिपेंडेंट थोड़ी, ये तो एक ही चीज है। तो दैट शुड बी इंडिपेंडेंट रिलेशन। तो जितने इंडिपेंडेंट रिलेशन है उतना माइनस कर देंगे, तो उतने कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो ये जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट हुए, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट में जैसे हम लोग ऐसे फेज स्पेस की बात करते हैं कि 3 डायमेंशनल, 6 डायमेंशनल या 2n डायमेंशनल, 3n डायमेंशनल फेज स्पेस की बात करते हैं, लेकिन जनरलाइज कोऑर्डिनेट में कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस की बात करते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस, कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस होता है कि ऐसा स्पेस जिसके कोऑर्डिनेट्स जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो, ऐसा स्पेस जिसके कोऑर्डिनेट जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो। द स्पेस whose coordinates are generalized coordinate is known as configurational space. The space whose coordinates are generalized coordinate is known as कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस। तो कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस की डायमेंशन फिक्स नहीं, कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस की डायमेंशन डिपेंड करेगी कि कितने ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शंस पता हैं आपको, कितने ज्योमेट्रिकल रिलेशन पता है, उनको हम लोग कंसीडर करके अपना कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस बनाएंगे। तो देखिए हमारे पास हमने कहा था कि कंस्ट्रेंट्स के कारण 2 कठिनाइयाँ आती हैं। पहली कठिनाई आई थी कि वो इंडिपेंडेंट नहीं थे कोऑर्डिनेट, लेकिन जैसे हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट डिफाइन किया तो पहली कठिनाई तो दूर हो गई, क्योंकि जब जनरलाइज नाम यूज किया, जैसे ही जनरलाइज वर्ड यूज किया तो कोऑर्डिनेट्स बिकम इंडिपेंडेंट। तो पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई।
अब दूसरी प्रॉब्लम रह गई कि हमारे पास फोर्सेस कौन से लग रहे थे। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने किया कि जो डायमेंशन थे उसको कम कर दिया। हमने अपना कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस ऐसा बनाया कि कोऑर्डिनेट्स ही कम बच गए, वो कंडीशन ही खत्म हो गई, उसको हमने माइनस कर दिया। जो कंडीशन हमारी थी x1 + x2, उसको एक को माइनस कर दिया हमने। तो कंस्ट्रेंट्स की जो कंडीशन थी उसको हमने अपने कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस से बाहर कर दिया, तो हमारे पास डायमेंशन घट गई। तो कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस की डायमेंशन फिक्स नहीं हुई। ऐसे कंसीडर करते हैं, एक केस कंसीडर करते हैं, मान लीजिए वन पार्टिकल, देयर इज वन पार्टिकल, वी नीड 3 कोऑर्डिनेट्स, से x1, y1, z1. If there are 2 particles, then we need 6 coordinates, x1, y1, z1 and x2, y2, z2. So we consider it as a single particle in 6-dimensional space. इस केस को हम लोग ऐसे कर, 2 पार्टिकल हैं तो एक के लिए x1, y1, z1 है, एक के लिए x2, y2, z2 है। तो इसको हम लोग ऐसे मान लें कि भाई ये टोटल एक सिस्टम है जो 6-डायमेंशनल स्पेस में मूव कर रहा है। तो 6 डायमेंशन का हो गया हमारा ये। और इसी तरह अगर देयर आर n पार्टिकल, तो कितने होंगे डायमेंशन, 3n। लेकिन अभी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, there is no constraint, this motion is free from constraint, then there will be 3n dimension. लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस होगा वो 3n डायमेंशनल होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई आपके पास कंस्ट्रेंट नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसके अंदर p कंस्ट्रेंट, ऐसे p इक्वेशंस हैं, p इक्वेशंस फॉर कंस्ट्रेंट, कि वहाँ पर p कंडीशंस हैं जो कि सेटिस्फाई करना है, p कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, वो कंस्ट्रेंट्स की कंडीशन से ज्योमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शंस है। और पार्टिकल कितने n, तो n पार्टिकल के लिए अगर कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता तो 3n डायमेंशनल आपका कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस होता। लेकिन अगर वहाँ पर p कंडीशंस हैं कंस्ट्रेंट की, तो आपके पास कितने अब जरूरत होगी, ये p माइनस हो जाएगा, 3n माइनस p, इतने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो 3n माइनस p, if there are p constraints, then 3n minus p dimensional space will be the configurational space. तो कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस की डायमेंशन फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करेगी कि आपके पास कितने आपके पास रिस्ट्रिक्शंस है, आपके पास कितने कंस्ट्रेंट्स हैं। तो आज बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे लैग्रेंजियन के बारे में, और उसमें थोड़ा उसके पहले वर्चुअल वर्क है और हमारा एक ये कुछ और टॉपिक्स हैं, उनको करते हुए अगले टर्न पे हम लोग यूज करेंगे, लैग्रेंजियन के बारे में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही करते हैं।